Good evening, and I am back with yet another episode of Rise and Shine. In this episode, good evening, I'm back with another session of Rise and Shine. And in this episode, we are going to talk about a very sensitive topic this time, and that is relationships. We all have people in our lives in different roles, in different capacities. People are there in your life. Some you are able to manage, some are able to manage you, and life goes on. I'll come to family relationships in some other lecture, some other episode. Right now we are going to talk about, the relationship that most of you are in. Well, if you are in a relationship with somebody, I don't know, honestly, I don't know whether to congratulate you on this or to sympathize with you. Because it happens both ways. When someone comes into your life, very rarely people come into your life, you forcibly enter their lives, isn't it? But then होता है, कुछ लोग अचानक से ज़िंदगी में आ जाते हैं. And the moment someone enters your life goes for a change, metamorphosis. That change, as I said, every coin has two sides. That change could make your life better, or it could make your life miserable. If it makes your life better, well and good, what more you can ask for? Go ahead. But experience tells us, and those around me, and those thousands of people are around me, I meet them practically every day. The second one is more common phenomenon. People enter your life, there's a short, I call that a honeymoon period. There's a short time of excitement, eagerness, keenness, putting your best foot forward, अच्छी बातें, मीठी बातें, that pink life that you live for a few days, for some time. Now, as the relationship gets stronger, or as people come closer, they get to know each other well, that's where the complexities start to arise. The complexities of nature, likes, dislikes, conflict of personalities, conflict of egos, conflict of culture, conflict of thinking. बहुत कुछ होता है जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे आने लगता है. आप लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी उतने मैच्योर नहीं है. तो वी आर एक्चुअली एस्केपिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम. जहाँ झगड़ा होते ही वो जो मेन पॉइंट है झगड़े का, वो तो कहीं खो जाता है. एंड इट बिकम्स अ क्लैश ऑफ ईगोज. आई एम बेटर वर्सेस यू आर बेटर, or you are not better than I, and like that. You are not getting it, understanding अच्छी नहीं है. फिर उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे रिलेशनशिप डिटीरियोरेट करना शुरू करती है. कुछ की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ ट्राई टू क्लिंग ऑन टू द रिलेशनशिप फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन, घसीटते हैं रिलेशनशिप को. लेकिन अल्टीमेटली 9 times out of 10 people fall apart. Reason, only one.
This is the sole reason why a relationship falls apart. Expectation. सोचना मेरी बात को. Maybe I'll be able to save some relationships. We start expecting. उसने ऐसा क्यों नहीं बोला, हमने ऐसा कहा था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, आज उसका फ़ोन आना चाहिए था. हर समय एक्सपेक्टेशन, इतना एक्सपेक्टेशन कि एक मेंबर को लगने लगता है कि दूसरा उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है. इसको मैं कहता हूं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. द रिलेशनशिप इज नेवर 50-50. इट कैन नॉट बी. ये भी सही है, इट कैन नॉट बी. 50-50 relationships are not possible. They are only theoretically possible. ये बात सही है कि one member has to have a upper hand and the other member has to have a lower hand in a relationship. वो तो mutual balance से during the passage of time वो establish हो सकता है. But this is a killer. Every time you are faced with this question, every time you are faced with this embarrassing question, without consideration, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी होती है और अंडरस्टैंडिंग जीरो होती है. अग्री करते हो? तुम यहां भी एक्सपेक्टेशन है, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा मेरी पोजीशन को समझे, है कि नहीं? और दूसरा ये सोच रहा है कि तुम उसकी पोजीशन को समझो. समझ कोई नहीं रहा है, समझता कोई नहीं है. तो यहां तो मतलब ही नहीं, ये तो डिलीट मार देते हैं और बस इसी उम्मीद में कि तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो. वो कहता है तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, आखिर तुम्हें समझना चाहिए. तो कहता है हम ही क्यों समझें. एंड दिस गोज ऑन, इट एस्केलेट्स. और यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती. ये तुम्हारे साथ एवरी सेकेंड डे होता है, एवरी सेकेंड डे. व्हेन यू मीट 10 मिनट के अंदर अंदर, व्हेन यू टॉक ऑन द फोन 5 मिनट के अंदर अंदर, इट हैपन्स. कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा और ये धीरे 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 डिस्टेंस पैदा करता है. और जब वो डिस्टेंस पैदा होता है तो एक खालीपन पैदा होता है. और जैसा कि कुदरत का नियम है, अगर कहीं खालीपन है तो उस खालीपन को कुछ ना कुछ भरेगा ज़रूर. दिस इज़ वेयर द थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप कम्स इन. बहुत तकलीफदेह होता है, तुम में से कुछ के साथ गुजरा होगा ज़रूर. When the third person enters, वो थर्ड पर्सन, ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पर्सन हमेशा कोई दुश्मनी हो. थर्ड पर्सन कुड बी एन एल्डर, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ सिंपथाइजर, अ सीनियर, कुछ कोई भी आ सकता है. उस खाली स्पेस पर फिर एक तीसरा आता है. फिर वो तीसरा तुम दोनों में दिखाता तो है कि दोनों को करीब ला रहे हैं, लेकिन उस तीसरे के अपने वैल्यूज सेट होते हैं, अपने विचार आने लगते हैं बीच में और वो डिस्टेंस और बढ़ता है. बताना अगर मेरी बात तुम में से कुछ के लिए काम की हो तो. और ये धीरे 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 करके रिलेशनशिप kills itself. Then starts the blame game. फिर वो आखिरी जो क्लाइमैक्स होता है वो ये होता है कि ब्लेम गेम. उसने ऐसा कर दिया वो बुरा था, तुम कहते हो नहीं उसने ऐसा कर दिया वो बुरा था.
मैं तो पहले से जानता था वो ऐसा ही है। तुम कहते हो वो कहता है मैं तो पहले से जान। अरे भाई, जब पहले से जानते थे तो फिर इसमें कूदे क्यों थे? पहले से कोई नहीं जानता था। तो बेसिक इशू ये है कि यू मस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ अ रिलेशनशिप। हाउ डज अ रिलेशनशिप वर्क? और ये बात, हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क, बात करूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आज सिर्फ इतनी बात की है आपके साथ कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या आती है। नेक्स्ट एपिसोड वील टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क। बाय बाय, गुड नाइट।